नजर नहीं आ रहा शेड की वजह से। पार्टिसिपेंट्स आए? पार्टिसिपेंट्स एक ही मैं ही हूँ और तो कोई नहीं है अभी। नहीं तो सर सही। अस्सलाम अस्सलाम सलाम। हुज़ैफा एक मिनट हुज़ैफा आयशा फातिमा मतलब ओके। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। वालेकुम अस्सलाम। Now today we are going to start exercise 2A, and we have already done such type of question before. अच्छा, question in equation is in form of quadratic equation. You have already done before in chapter number 1 how to solve quadratic equation. Quadratic equation are of the type of ax square plus bx plus c, right? This form of equation is equal to 0. This form of equation is called quadratic equation, right? Now it is in form of quadratic equation. आप कहेंगे ये कैसे quadratic equation है? If we solve it, expand it, then we get 1 upon 2 x square. फिर 1 upon 2 x will multiply by this plus 1, then we will get 1 upon 2 x. देखें a is 1 upon 2 x square plus b x, b is 1 upon 2 and c is 0, right? So it is in form of quadratic equation. Now here question is evaluate them. Who is joining? Muhammad Ali, Afza, Farhad. अब्दुल्ला एक मिनट। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Question 2. We are starting from 2. ठीक है। और who has joined? Abdullah. Okay.
Exercise 2A, it is on page number 44. We are starting from question number 2. अच्छा, evaluate them. You have equation in form of quadratic. Quadratic equation is like this: ax square plus bx plus c is equal to 0. तो अगर हम if we expand this the bracket and multiply 1 upon 2x by x, then we are getting this thing 1 upon 2x square. If we multiply 1 upon 2x plus 1, then we are getting this. So it is in form of quadratic. तो यहाँ इन्होंने कॉमन ले लिया है, ठीक है. Now f means function. F means function. F denotes for function. Right? Now, what is function here? Function means limit. Function means limit. ये कहीं साइड में आप राइट साइड ऑफ योर पेज लिख लीजिए. फंक्शन मीन्स लिमिट. यहाँ आपको लिमिट गिवन है. थ्रू आउट द एक्सप्रेशन वी हैव ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x. So here in question value of x is given, that is one, part number 1 starting f1 यानी function 1, यानी आपने लिमिट 1 लगानी है. f means function and function means limit. तो यहाँ आपको लिमिट गिवन है, यानी value of x is given 1. x you will be replaced by 1 in the expression. Right? Now you will write as the value of solution f1. अब आप यहाँ रखेंगे x is equal to 1. यहाँ लिखे x is equal to 1. राइट? यहाँ इन ब्रैकेट आपको क्या गिवन है 1 और यहाँ ब्रैकेट पे क्या है x, यानी x will be replaced by 1. अब x को सपोज करें 1, तो जहां जहां x है वहां आपने 1 से रिप्लेस करना है. ठीक है. तो f1 is equal to 1 upon 2 in given expression. This is your given expression. 1 upon 2 x will be replaced by 1. अच्छा, you can write in bracket also, or just write multiply by 1. Bracket start because we have another bracket here. So यहाँ पर x will be replaced by 1 plus 1 bracket close. First you simplify the round bracket expression. 1 upon 2 को 1 से multiply करेंगे, same thing will come. Now 1 plus 1 2, right? Who is waiting? Muhammad Ali Bari, Hamna, Abdul Hadi. First time attending Abdul Hadi? Second time I think. Before that he attend one time attend. Okay. Starting question number 1, exercise 2A. Given expression is this: f in bracket x, it means f for function, right? So x, throughout the expression we have only one variable, that is x. That's why it is written in bracket. अच्छा, in given parts value of x is given. Different values of x are given. Here in part number 1 x is equal to 1. यानी जहां x है एक्सप्रेशन में वहां आप वैल्यू x 1 पुट कर देंगे. ठीक है. तो when we are putting value of x 1 in bracket 1 plus 1, first you simplify the round bracket expression. 1 plus 1 2. अब 2, अब देखिए they are going to multiply. ये क्रॉस कैंसिलेशन इज हैपनिंग हियर. तो f1 वैल्यू इज कमिंग, यानी आपने x की वैल्यू 1 पुट की है. टीचर फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2A, पेज 44. ठीक है. 1 लेकर आगे 2 से स्टार्ट करेंगे. तो 2 is 2 कैंसिल, तो वैल्यू आर पुटिंग वैल्यू ऑफ 1, व्हाट थिंग इज कमिंग 1. ठीक है. ये आपका आंसर हो गया. बस ये आपने एवुलेट करना है, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें x वेरिएबल इज गिवन, तो x वैल्यू आर गिवन. 1 है तो 1 पुट करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. दैट्स हाउ यू हैव टू डू. दिस इज योर पार्ट 1. अब पार्ट 2 पे आ जाए. ये कॉपी डाउन कर लें, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वन. 4 नहीं कीजिएगा, नंबर 3 तक करने हैं, 1 to 3.
Okay, next is f, part number 2, f in bracket 2, यानी x will be replaced by 2. Expression, right? Expression fx is equal to 1 upon 2. You copy down it. X in round bracket x plus 1 bracket close. Now what we have to put? X is equal to 2. x को 2 से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे f in bracket 2, x will be replaced by 2, which is equal to 1 upon 2 multiply by value of x रखे 2 in bracket 2 plus 1. Now you have to simplify the numbers. First you round bracket solve, round bracket 1 upon 2 multiply by 2, 2 plus 1 3 ब्रैकेट क्लोज। अब जहां कैंसिलेशन हो रही है वहां आप कैंसिलेशन कर दें। देखें 2 and 2 आर गोइंग टू कैंसिल, या तो आपको प्रोडक्ट करना चाहे तो प्रोडक्ट कर लें, इज अप टू यू हाउ यू आर सॉल्विंग। या तो आप इसको प्रोडक्ट कर लें 2 3 6, देन यू इन नेक्स्ट स्टेप यू कैंसिल इट, और अदरवाइज आप यहीं पर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहीं पर कर दें। रिड्यूस हो गई, 3 इज लेफ्ट, so answer is 3 when you are putting 2, right? So number 2 is done. Now come to number 3, part 3. How easy they are, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको f फॉर फंक्शन, यानी आपको डिफरेंट फंक्शन मींस लिमिट, आपको लिमिट गिवन है x इज इक्वल टू सम 1, तो 1 लिमिट है तो x की, तो x आपकी वैल्यू x 1 पुट कर देंगे। 2 गिवन है तो लिमिट 2 इज गिवन, तो आप 2 वैल्यू सब पुट कर देंगे, राइट। नाउ इन पार्ट 3 f3, f3 पार्ट नंबर 3। अब आप गिवन एक्सप्रेशन लिखे f x 1 upon 2 x plus 1 bracket close। now x is equal to x लिमिट, आपको लिमिट क्या गिवन है 3। अब आप यहाँ x will be replaced by 3 bracket close, 1 upon 2 multiply by 3, ठीक है। x will be replaced by limit 3 bracket start 3 plus 1. Now you simplify the figure. First you round bracket solve the round bracket, हमें याद रखें पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है। अगर दे आर डूइंग प्लस और माइनस उसको किया, अगर पावर है तो वो पावर भी सॉल्व होगी, राइट। रूट है तो रूट का सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर की वैल्यू से सिंप्लीफाई करेंगे। ये कैंसिलेशन इज नॉट हैपनिंग, तो 1 upon 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 plus 1 4। अब आप या तो 4 3 जा 12 कर लें, यूं कर लें, या 2 and 4 को सिंप्लीफाई कर लें, वो डिपेंड्स है। यूं यहाँ मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ इस टाइम, 2 3 4 जा 12 अपॉन 2, और 2 से वो कर लें आप, तो वैल्यू इज कमिंग व्हाट, बताइए व्हाट वैल्यू इज कमिंग 6। बस ये आंसर हो गया। when you are putting x value 3 you are getting 6, right? टीचर ये 12 अपॉन 2 कैसे आया? 12 upon 2 by multiplying 3 multiplying by 4, 3 4 is 12, देखिए 3 plus 1 4, 4 3 is 12। अब यहाँ जो आप चाहे तो 12 ना करें, प्रोडक्ट ना करें, 2 को 4 से कैंसिल कर दे, ये यू कर दे क्रॉस कैंसिलेशन, इससे तो नहीं हो सकती, इससे तो हो सकती है, यू कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 2, 3 2 is 6, आंसर वही आएगा, चाहे मेथड से करें या उस तरह से कर लें, ठीक है। After that, part 5. Come to 5. Have you written this side?
You are also solving with me? Shall I erase this thing? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, now next is part number 5. 5 में क्या है? 5 5 F5 2 minus F4. यहाँ 2 वैल्यूज हैं, देखें ये 3 स्टेप. दिस पार्ट विल बी डन इनटू 3 स्टेप. In first step, you put first value of x5. फिर second step में value of x4 put करेंगे. फिर टीचर आपने 5th सम कर लिया है, 4th सम करना है. sorry, टीचर आपने 5th पार्ट कर लिया, 4th पार्ट नहीं किया आपने. fourth skip कर दें, fifth पे आ जाए. ठीक है. ओके टीचर. इसमें जरा डबल वर्किंग है आपकी. 3 स्टेप में होगा. पहले आपने F5 पुट करना है. 5 पुट करेंगे, उससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. फिर 4 वैल्यू पुट करेंगे, उससे कर लें. उसके बाद फिर हम दोनों का डिफरेंस है. 3 स्टेप में होगा. तो फर्स्ट टाइम आई एम पुटिंग, पहले ये गिवन एक्सप्रेशन लिख लें. एफ एक्स 1/2 एक्स एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ये लिख लिया आपने. नाउ अब लिखे आप यू आर फाइंडिंग F5. F5 means function. F for function and limit is 5. फंक्शन की जो लिमिट है वो 5 है, यानी x will be replaced by 5. रखें यहाँ पर x is equal to 5. तो F5 आपने रखा 1/2 multiply by 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 plus 1. फिर देखें यहाँ तो कैंसिलेशन इज नॉट हैपनिंग, तो आपने पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर ले. 5 plus 1 6. 6 आ गया. आफ्टर दैट क्या करें? 2 और 6 को कैन बी कैंसिल, या अभी पहले इसका प्रोडक्ट कर लें. F5 इज इक्वल टू 5 6 30. 30/2 को डिवाइड करें. व्हाट थिंग इज कमिंग? 15. 15. हाँ, एक आंसर तो एक पार्ट का आंसर तो ये आया आपका 15. अंडरलाइन. ठीक है. बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x5 वी आर गेटिंग 15. अब आपने रखनी है 4 से करना है. नाउ नेक्स्ट लिमिट इज 4. ठीक है, मैं यहाँ करेंगे. तो हमें साइड पे करना है या नहीं, आप तो कंटिन्यू करें ना. नेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन. अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाए 4. नाउ F4 यानी इट मीन्स x इज इक्वल टू 4. तो अब आप यहाँ रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट स्टार्ट 4 plus 1. ठीक है. नाउ यू सॉल्विंग. किससे कर रहे हैं? F4 से. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 plus 1 5. ठीक है. अब आ जाए 4. अब 4 5 20. 20/2 करें. व्हाट इज कमिंग? F4 10. 10. हाँ, कैंसिल कर दें या डिवाइड कर दें, व्हाटएवर. ठीक है. अब आपने F5 से कर लिया, ये आ गई वैल्यू. F4 से करके ये वैल्यू आ गई. ठीक है. नाउ फाइंड आउट देयर डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस करेंगे इन नेक्स्ट स्टेप. नाउ फाइनली F5 minus
4. अब डायरेक्टली यू पुट द वैल्यू, ठीक है। F5 वैल्यू इज 15, F4 वैल्यू इज कमिंग 10। आ गया आंसर आपका। क्या हो गया? 5 आंसर। फाइनल आंसर इज कमिंग दिस, राइट। नाउ इज इक्वल टू F5 माइनस F4। हाँ, अब इसकी एक्सप्रेशन, अब ये इसका आंसर ये आया कंप्लीट, राइट। तो ये it is it will done into 3 parts. In first part we will find out F5, in second part find out F4, in third part we will find out their difference, ठीक है। Now similarly do part number 6 करें। Come to part 6. Okay, now let's start part number 6. Similarly, कहाँ से erase करिए? You have done all this, Yes, students? teacher. Okay. रुको beginning से करना। Part number 6. 6 में क्या करना है? F7 function limit is 7 given, और यहाँ पर भी डिफरेंस है minus F6। ये भी it again it will done into 3 parts as you have done in part number 5. लिख लें Fx is 1/2 x bracket start x plus 1. Now first you put F7, right? We are going to find out F7. F for function and limit is 7. It means x is equal to 7, ठीक है। अब x को 7 से रिप्लेस कर देंगे। 1/2 multiply by 7 ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस 1 करें 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 8 8 7 से कर दें 56/2 डिवाइड कर दें। F7 की वैल्यू ये है 2 8। आई थिंक ये आ रही है, चेक कर लें आप। 28, राइट। अब नेक्स्ट करें सिमिलरली, फाइंड F6। सिक्स से करेंगे, ये सेम लिखा आपने। नाउ F6 गिवन एक्सप्रेशन, यहाँ 6
रिप्लेस कर दें बाय 6, x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से सी f6 is equal to 1/2 multiply by 6 in bracket 6 plus 1। या तो यहीं पर रिड्यूस कर दें यू क्रॉस कैंसिलेशन करके, डिपेंड्स ऑन यू। 6/2 6 plus 1 7 7 6 कर दें या 6 7 और डिवाइडेड बाय 2 42/2 f6 is coming। ये आई थिंक ये दिस थिंग इज कमिंग, चेक कर लें आप। नाउ फाइंड देयर डिफरेंस। ये तो प्रीवियस f7 की 21 ये करेंगे, हाँ 21, ये भी आंसर नहीं आया है। And now find out their difference। अब थर्ड पार्ट, ये f7 से किया, ये आ गया, f6 से एवोलेट किया, ये वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड देयर डिफरेंस। यहाँ लिखे नाउ f7 माइनस f6, इनका डिफरेंस करेंगे। हु इज ज्वाइनिंग लेट? युसरा डिस्कनेक्ट हो गई थी। ज्वाइनिंग okay, now Yusra, you are present। रखें f7 की वैल्यू इज 28 इज इक्वल टू, यहाँ रखें 28 यहाँ रखिए आपने 28 माइनस 21 कर दें, वो आपका आंसर होगा। f7 माइनस 7 टीचर। ओके, क्या आ गया? 7 7 आंसर। ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? दीज आर वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। हाँ, एनी क्वेश्चन? ओके, इसके बाद आप आ जाइए नंबर 7 पर, पार्ट नंबर टीचर जो 4 पार्ट है वो नहीं करना है? 4 7 कर ले, 7 पे आ जाए। टीचर 4 पार्ट आपने लीव करवाया है? पार्ट नंबर 4 come to part number 7। quickly then I will read the board। now number 7 is going to start और there I am going to raise this thing। कर दूं मैं? चले नंबर 7 ओके, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ से पार्ट नंबर 7। in part number 7 what the f function x plus 1 यानी x will be replaced by this whole expression x plus 1। अब instead of numerical number variables are also given with constant, variables are given with constant। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन लिखे हैं आपके पास, क्या है 1/2 x plus 1। अब जहां जहां x है it will replace by x plus 1, right? Be careful here।
अब वो सिंपल क्वेश्चन है नहीं कि आपने न्यूमेरिकल नंबर पुट किया और सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस माइनस प्रोडक्ट करके कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर है होल एक्सप्रेशन x प्लस 1, तो ये देखें 1/2, अब x विल बी रिप्लेस बाय x प्लस 1, पूरा ब्रैकेट लिखे यहाँ पर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये तो आपने x की वैल्यू लिख ली यहाँ पर x प्लस 1, ये जो आपको लिमिट गिवन है x प्लस 1 ये लिख ली, ठीक है। अब वी हैव अनदर ब्रैकेट, उसमें भी x है, अब ये इसको इससे रिप्लेस कर दें x प्लस 1 से, x विल बी रिप्लेस बाय x प्लस 1, x के बजाय x प्लस 1 लिख लिया और प्लस 1 ऑलरेडी वहां पर है, ब्रैकेट क्लोज। पहले सिंप्लीफाई द राउंड ब्रैकेट, इसको कर लें रिड्यूस कर लें वैल्यू 1/2। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, समझ में आ गई? यू गॉट इट? यस टीचर। ओके, अब सी 1/2, एक ब्रैकेट तो ये है, राउंड ब्रैकेट भी है, in round bracket we have x plus 1, in another round bracket simplify together constant with constant x plus 2, we have now two brackets, right? बस दिस इज योर आंसर, इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, बस यही होगा आपका आंसर, राइट? इस तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह से आप कर लें। नंबर 9 करें, नंबर 9 मजीद सॉल्व ये से हो सकता है, आप इसको प्रोडक्ट कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, तो ये सेम थिंग विल कम, कोई फायदा नहीं है। नंबर 9 कर ले, नंबर 9 टीचर 8 नहीं करना है? नहीं 8 रहने दे, 9 कर ले। टीचर कैन आई आस्क वन थिंग? यस टीचर 4 और 8 आपने स्किप कराए। जी। नंबर 9 नंबर 9 में क्या है? In number 9 f(x square), number 9 f(x square), अब x square, अब you have to put x square, देखिए we have expression this x will be replaced by x square, तो अब यहाँ पर आपने x square रखना है, ठीक है। 1/2, अब देखिए मैं यहाँ पर पुट करेंगे x will be replaced by x square, यहाँ पर x square रखेंगे, राइट। टाइम इज शॉर्ट, what time is left? 7 minutes are left, ठीक है। कंप्लीट इट। चलिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1/2 क्या हो जाएगा आपका? सिंप्लीफाई करके बताएं जरा, व्हाट थिंग इज कमिंग? या इसको यूं कर ले, फर्दर इसको इससे प्रोडक्ट कर ले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इससे कर ले, एक्स पावर क्या हो जाएगी? 4। यही पर आप लीव कर दें आंसर, या फर्दर करना चाहें तो प्रोडक्ट कर ले, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो वी हैव डन their parts, question number 2, right?
नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टुमारो, क्योंकि बीच में रह जाएगा, टाइम इज शॉर्ट, 3 मिनट्स आर लेफ्ट, कितने हैं? और एनी क्वेश्चन? No teacher. ओके, सॉल्व देम इन सीपी, ठीक है, और सीपी इज बिकम नाउ योर HP1। तो इसमें टीचर अगर सीपी नहीं हो तो एचपी में कर लें। पहले करना तो है, कर लीजिएगा, ठीक है। और गेट बैक योर नोटबुक इफ you have them you have submitted at school, so give them back. Okay, class is going to end. Inshallah we will start tomorrow. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।